کہانی کی شروعات سمندر کے اوپر اڑتے ایک ہیلی کاپٹر سے ہوتی ہے جس میں بیٹھے کچھ سائنسدان اسالا نوبلار نامی ایک رہسیمئی ٹاپو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک ایسا ٹاپو تھا جہاں جان ہیمن نامی ایک سائنسدان نے کروڑوں سال پہلے ولپ ہو چکے ڈائناسوروں کو پھر سے زندہ کر دیا تھا، اور آج پہلی بار کچھ چنندہ لوگ اس چمتکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر اس رہسیمئی ٹاپو پر اتر گیا۔ اس کے بعد سبھی لوگ بغیر وقت گوا گاڑیوں میں بیٹھے اور سیدھے جراسک پارک کی طرف نکل پڑے۔ جلدی ہی گاڑیاں سرکشید فینس کو پار کر کے ایک کھلے میدان میں پہنچ گئیں، تبھی اچانک ڈاکٹر ایلن کی نظر پہلی بار ایک زندہ ڈائناسور پر پڑی۔ ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس نے تورنت ایلی کو بھی وہ اور دیکھنے کو کہا۔ اتنے وشال جیب کو سامنے دیکھ کر ایلی بھی دم رہ گئی۔ جب دونوں دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچے تبھی جان نے بتایا کہ اس وشل کی ڈائناسور کا نام براکیوسورس ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں تھوڑا اور آگے لے کر گیا جہاں انہیں چاروں طرف الگ الگ پرجاتیوں کے وشال ڈائناسور بے خوف گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ نظارہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو وہ سچ مچ ڈائناسوروں کی دنیا میں پہنچ گئے ہوں، لیکن تبھی جان نے انہیں ایک اور بڑا سرپرائز دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے دنیا کے سب سے خطرناک شکاری ٹکس کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ایلن پوری طرح حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروڑوں سال پہلے ولپ ہو چکے ڈائناسور آخر پھر سے زندہ کیسے ہو گئے۔ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جان سب کو ترنت وزیٹر سینٹر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک اینیمیٹڈ فلم کے ذریعے پوری کہانی سمجھائی۔ اس نے بتایا کہ اس سب کی شروعات زمین کے اندر دبے ایک ایمور سے ہوئی تھی۔ دراصل کروڑوں سال پہلے مچھر ڈائناسوروں کا خون چوسا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ بدقسمت مچھر پیڑوں کے ریزن میں پھنس گئے۔ وقت کے ساتھ وہی ریزن زمین کے اندر دبتے چلے گئے۔ ملینز آف ایئرز کے بعد جب انسانوں نے اس ایمور کو کھوج نکالا تو اس کے اندر قید مچھروں سے ڈائناسور کا خون نکالا گیا۔ اسی خون سے سائنسدانوں نے ڈائناسور کے ڈی این اے کے کچھ حصے حاصل کر لیے، حالانکہ ڈی این اے ادھورا تھا۔ اس لیے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے سائنسدانوں نے اس میں مینڈک کا ڈی این اے بھی ملا دیا، اور اس طرح کروڑوں سال پہلے ولپ ہو چکے ڈائناسوروں کو پھر سے زندہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جان سب کو ریسرچ لیب میں لے گیا۔ قسمت سے وہ بالکل صحیح وقت پر پہنچے تھے، کیونکہ اسی وقت ایک ننا ڈائناسور انڈے سے باہر آ رہا تھا۔ یہ ادیت نظارہ دیکھ کر جان مسکراتے ہوئے بولا کہ اس دیپ پر جنم لینے والا ہر ڈائناسور سب سے پہلے اسی کا چہرہ دیکھتا ہے۔ تبھی ایان نے مذاق میں پوچھا کہ یہ نر ہے یا مادہ؟ تبھی ڈاکٹر ہنری وہ بولے کہ پارک کے سبھی ڈائناسور صرف مادہ ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ کبھی ریپروڈکشن نہ کر سکیں اور ان کی آبادی ہمیشہ نینترن میں رہے۔ اسی دوران ایلن کی نظر اپنی ہتھیلی پر رکھے اس ننے ڈائناسور پر گئی۔ دھیان سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام ڈائناسور نہیں بلکہ ایک ویلوسیرپٹر ہے، جسے دنیا کا دوسرا سب سے خطرناک ڈائناسور مانا جاتا ہے۔ ایلن کی ایکسائٹمنٹ بڑھتے دیکھ جان ترنت اسے ریپٹروں کے بارے میں لے گیا۔ قسمت سے اسی وقت ریپٹروں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ سٹاف ایک زندہ بیل کو رسیوں سے باندھ کر دھیرے دھیرے ریپٹروں کے بارے میں اتار رہا تھا۔ جیسے ہی بیل زمین پر پہنچا اندر سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگے۔ ریپٹر دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کی موجودگی ہی ڈر پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسی بیچ پارک کا سیکیورٹی لیڈر رابرٹ بھی وہاں آ پہنچا۔ وہ ریپٹروں کے شکار کرنے کے طریقے کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لمبے وقت تک انہیں آبزرو کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ ریپٹر 50 سے 60 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ وہ لمبی چھلانگ لگانے میں ماہر ہیں اور ان کا تیز دماغ کسی انسان سے کم نہیں۔ تبھی رابرٹ نے ایک اور چونکانے والی بات بتائی۔ ہر بار جب ریپٹروں کو کھانا دیا جاتا ہے تو وہ باڑے پر حملہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایک ہی جگہ کو نشانہ نہیں بناتے۔ ہر بار وہ فینس کے الگ الگ حصے کو پرکھتے ہیں تاکہ اس کی سب سے کمزور جگہ ڈھونڈ کر بھاگ سکیں۔ اب سب کو سمجھ آ چکا تھا کہ ریپٹر صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ کافی چالاک بھی ہیں۔ ریپٹروں کو کھانا کھلانے کے بعد سب لوگ جراسک پارک کی سیر پر نکل پڑے۔ انہیں خاص طرح کی آٹومیٹک الیکٹرک کاروں میں بٹھایا گیا جو بغیر کسی ڈرائیور کے اپنے آپ چلتی تھیں۔ اس بار ان کے ساتھ جان کے پوتے پوتی لیکس اور ٹم بھی موجود تھے۔ جیسے ہی کاروں نے جراسک پارک کا وشال گیٹ پار کیا، اسی پل ان کی رومانسک یاترا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے وہ ڈالوفوسوس کے ایریا میں پہنچے جہاں ایک بے حد خطرناک مانساہاری ڈائناسور رکھا گیا تھا۔ سبھی لوگ بڑی بے صبری سے اس کی پہلی جھلک کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ لوگ غلط وقت پر پہنچے تھے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی انہیں اس کی ایک جھلک تک دیکھنے کو نہیں ملی۔ آخرکار نراش ہو کر کار آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ پارک کے سب سے خطرناک شکاری ٹکس کے باڑے تک پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں نراش ہی ہاتھ لگی، کیونکہ پورے باڑے میں ٹکس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مہمانوں کو مایوس ہوتے دیکھ جان نے ترنت ایک زندہ بکری چھوڑنے کا آدیش دیا تاکہ اس کی گن سے ٹکس باہر نکل آئے، لیکن کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی ٹکس باہر نہیں نکلا۔ تبھی ایلن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ٹکس کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، اسے پروسا ہوا کھانا بالکل پسند نہیں، بلکہ وہ شکار کو اپنے ہی دم پر مار کر کھانا پسند کرتا ہے۔ لگاتار دوسری بار بھی ڈائناسور نہ دکھنے کی وجہ سے سب لوگ اور آگے بڑھ گئے۔ تبھی اچانک ایلن کی نظر جھاڑیوں کے بیچ پڑے ایک وشال ڈائناسور پر گئی۔ اس نے بنا دیر کیے چلتی کار کا دروازہ کھولا اور باہر کود پڑا۔ ایلی بھی ترنت اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ یہ سب دیکھ کر کنٹرول روم میں موجود جان بری طرح گھبرا گیا، کیونکہ وہاں موجود لوگوں کو اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ کس خطرے کی اور بڑھ رہے ہیں۔
जैसे ही एलन और बाकी लोग इस जगह पहुंचे तो उन्हें जमीन पर एक विशाल ट्राइसीराटॉप्स दर्द से तड़पता हुआ दिखाई दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, इसकी बस तबीयत खराब है। लेकिन इतने विशाल डायनासोर को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखकर हर कोई हैरान था। तभी एली ने अंदाजा लगाया कि शायद इस डायनासोर ने कोई जहरीला फल खा लिया है। जानवरों के डॉक्टर होने के नाते इसने वहीं रुककर उसका इलाज करने का फैसला किया। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से एक इमरजेंसी मैसेज आया। सभी को टर्निट पार्क के मैन सेंटर में वापस लौटने को कहा गया। दरअसल बाड़े में लगे कैमरों में ट्रकस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से पूरे पार्क में हड़कंप मच चुका था। इसी कारण दोपहर का बाकी टूर टर्निट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन एली ने वापस लौटने से मना कर दिया। इसने तय किया कि वो पहले बीमार ट्राइसीराटॉप्स का इलाज करेगी, फिर पार्क के स्टाफ के साथ सरकशी लूट आएगी। उधर जैसे ही बाकी लोग वापस जाने लगे तभी कंट्रोल रूम में मौजूद डिनीस बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन निकलने से पहले इसने जान से कहा कि इस सिस्टम में कुछ जरूरी मेंटेनेंस करना है, इसलिए पूरे पार्क का नेटवर्क करीब 1 घंटे के लिए बंद रहेगा। जान को इसकी बात पर जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। डिनीस ने जानबूझकर पूरा सिस्टम बंद किया था ताकि सिक्योरिटी कैमरे इसकी हरकत रिकॉर्ड न कर सके। दरअसल 2 दिन पहले एक बड़ी कंपनी ने इसे डायनासोर का डीएनए चुराने के बदले $200 मिलियन में खरीद लिया था। जैसे ही कैमरे बंद हुए वो सीधे रिसर्च लैब में पहुंच गया। वहां से इसे जितने भी कीमती डीएनए सैंपल मिले इसने इन सभी को चराकर एक स्प्रे कीम के अंदर छुपा लिया। इसके बाद वो किसी को भनक लगे बना अपनी कार लेकर पार्क से निकल पड़ा। उधर पूरे एरिया की बिजली बंद होते ही दोनों टूर कारें ट्रकस के एरिया के ठीक बाहर रुक गईं। एलन और बाकी लोगों को लगा कि कुछ ही देर में बिजली वापस आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला किया। इसी बीच टिम की नजर कार के अंदर रखे पानी के ग्लास पर पड़ी। इसने देखा कि पानी की सतह पर अचानक हल्की हल्की लहरें बनने लगी है, मानो कोई भारी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। टिम ने बना देर किए अपना नाइट विजन गूगल पहना और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। तभी इसकी नजर इस जगह पड़ी जहां दिन में ट्रकस को लुभाने के लिए एक बिक्री बांधी गई थी, लेकिन अब वहां बिक्री का नाम और निशान तक नहीं था। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक खून से सत्ती बिक्री की टांग सीधे कार के शीशे पर आ गिरा। ये देखकर सबके होश उड़ गए। तभी अचानक पार्क का सबसे खतरनाक शिकारी ट्रकस उनकी कार के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। इसे इतने करीब देखकर डोनाल्ड बुरी तरह घबरा गया। इसने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ा और जान बचाकर कार से बाहर भाग निकला। भागते भागते वो सड़क किनारे बने एक छोटे से टॉयलेट में जाकर छप गया। उधर बिजली बंद होने की वजह से ट्रकस आसानी से फीनिस तोड़कर बाहर निकल आया। हालात बिगड़ते देख एलन ने टर्निट अयान से कहा कि बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि रात के वक्त ट्रकस की नजर सबसे पहले हिलती हुई चीजों पर जाती है। उधर आगे वाली कार में बैठे लेक्स और टिम इससे पूरी तरह अनजान थे। लेक्स ने टर्निट कार की डिग्गी से टार्च निकाल ली और मदद के लिए इसे जलाकर इशारे करने लगी। लेकिन इसकी यही गलती इस पर भारी पड़ गई, क्योंकि टार्च की रोशनी ने सीधे ट्रकस का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। इसने एलन की कार छोड़ दी और सीधे बच्चों की कार के सामने पहुंच गया। इतने विशाल डायनासोर को सामने देखकर टिम बुरी तरह घबरा गया। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे से कार का खुला दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अभी भी दोनों भाई बहन बुरी तरह डरे हुए थे। वो बना हिले डले बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह ट्रकस वहां से चला जाए। मगर कार के अंदर जल रही तेज टार्च की रोशनी से वो और भड़क गया। इसने जोरदार दौड़ लगाई और पूरी ताकत से कार पर हमला कर दिया। हालांकि मजबूत शीशों की वजह से वो दोनों बच्चों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इससे इसका गुस्सा और बढ़ गया। इसने एक ही झटके में पूरी कार को पलट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगा। कार के अंदर फंसे लेक्स और टिम धीरे धीरे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। ये देखकर एलन एक पिल भी नहीं रुका। वो टर्निट फ्लेयर लेकर गाड़ी से बाहर निकला और इसे जलाकर ट्रकस का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। इसका प्लान लगभग काम कर ही गया था, लेकिन तभी अयान एक और फ्लेयर लहराते हुए बाहर निकला और ट्रकस को अपनी तरफ बुलाने लगा। नतीजा ये हुआ कि ट्रकस अपनी दिशा बदलकर अयान के पीछे लग गया। अयान टर्निट उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते इसने हाथ में पकड़ा फ्लेयर भी दूर फेंक दिया ताकि ट्रकस इसका पीछा छोड़ दे। लेकिन ट्रकस इस जलती रोशनी को छोड़कर सीधे अयान के पीछे ही दौड़ता रहा। बदकिस्मती से वो जिस तरफ भाग रहा था इसी दिशा में वो छोटा सा टॉयलेट था जहां डोनाल्ड छुपा बैठा था। अगले ही पिल ट्रकस पूरी ताकत से टॉयलेट से जा टकराया। अचानक हुए हमले से अयान दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा डोनाल्ड पर था। अब उसका सामना सीधे ट्रकस से था। वो संभल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक ट्रकस का ध्यान भटकते ही एलन टर्निट बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। लेकिन टिम अभी बाहर निकला भी नहीं था कि तभी अचानक ट्रकस ठीक उनके सामने पहुंच गया। ये देखकर लेक्स जोर से चीख पड़ी, मगर एलन ने टर्निट इसका मुंह बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज ट्रकस तक न पहुंचे। किस्मत से ये तरीका काम कर गया। ट्रकस ने उन पर हमला नहीं किया। वो बार बार पलटी हुई कार को सर से धक्का देने लगा। कार जिस तरफ घूमती एलन और लेक्स भी टर्निट इसी हिसाब से अपनी जगह बदल लेते ताकि हर बार ट्रकस की नजर से बचे रहे। कुछ ही पिल्लों में ट्रकस के लगातार धक्कों की वजह से एलन और लेक्स बाढ़ के बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए। अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। हालात बिगड़ते देख एलन ने बना देर किए लेक्स को अपनी पीठ पर उठाया और स्टील की तार के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया।
लेकिन इसी वक्त ट्रकस कार को धक्का देता हुआ इसे खाई के किनारे तक ले आया। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल पूरी कार उनके ऊपर आ गिरेगी। खतरा भापते ही एलन ने पूरी ताकत से स्टील की तार को झड़लाया और दोनों दूसरी तरफ पहुंच गए। इस तरह वो मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। इधर कंट्रोल रूम में जान और उसकी टीम हर हाल में बिजली वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से काफी वक्त बर्बाद हो रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी के पास कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन जान की सबसे बड़ी तंशा लेक्स और टिम थे, जो अभी भी ट्रकस के एरिया में फंसे हुए थे। आखिरकार उसने बड़ा जोखम उठाने का फैसला किया और रॉबर्ट को बच्चों को वापस लाने के लिए भेज दिया। ये देखकर एली भी एक पिल रोकी नहीं, वो तरनित इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर वो मोटा डेनिस चराए हुए डायनासोर के डीएनए के साथ तेजी से एस-2 की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तेज बारिश और कीचड़ की वजह से इसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी रेलिंग तोड़ती हुई नीचे जा गिरे। बाहर निकलकर उसने देखा कि इसकी गाड़ी एक गिरे हुए के ऊपर फंस चुकी थी। हालांकि किस्मत से सड़क ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए इसने बना देर किए टवर अप की मदद से गाड़ी बाहर निकालनी शुरू कर दी, लेकिन रस्सी बांधते वहां एक डीलोफोसोर्स आ पहुंचा। इसे देखते ही डेनिस की हालत खराब हो गई, लेकिन इसने खुद को ऐसे दिखाया मानो इसे इसका जरा भी डर ना हो। फिर वो धीरे धीरे वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसने देखा कि डीलोफोसोर्स लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा है। घबराहट में डेनिस ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और इसे दूर फेंक दी। इसे लगा कि वो भी कुत्ते की तरह लकड़ी के पीछे भाग जाएगा, लेकिन वो डायनासोर अपनी जगह से टस से मिस भी नहीं हुआ। अब डेनिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो घबरा कर पूरी ताकत से अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही डीलोफोसोर्स ने इस पर जहरीला थोक उछाल दिया। घबराहट में वो तरनित उठा और पूरी रफ्तार से भागने लगा, लेकिन डीलोफोसोर्स ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और फिर से डेनिस के चेहरे पर जहरीला थोक उछाल दिया। अब डेनिस की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। घबराहट में वो गाड़ी के दरवाजे से टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान इसकी जेब में रखा स्प्रेकीन भी नीचे गिर गया, लेकिन डेनिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। वो किसी तरह उठकर जल्दी से गाड़ी के अंदर छप गया। इसे यकीन हो गया कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डीलोफोसोर्स पहले ही गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में इस डायनासोर ने डेनिस का वही काम तमाम कर दिया और उसके चराए हुए जीन्स भी हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गए। उधर एलन और लेक्स अब भी ट्रकस के इलाके में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ टिम अपनी टवर कार समेत एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ था। हर गुजरते पिल के साथ इसकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए एलन ने बना देर किए इसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। कमशक्कत के बाद वो किसी तरह टिम तक पहुंच गया। जैसे ही इसने कार के अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि टिम अभी भी जिंदा था, लेकिन इससे पहले कि ट्रकस दोबारा लूटता, एलन ने साफ से टिम को कार से बाहर निकाला और इसे अपने साथ नीचे उतारने लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही दोनों नीचे उतरने लगे, ऊपर पेड़ों में फंसी टवर कार भी धीरे धीरे खिसकने लगी। गनीमत ये रही कि मोटी शाखों ने इसकी रफ्तार काफी धीमी कर दी। इसी का फायदा उठाकर एलन और टिम तेजी से नीचे उतर आए, लेकिन अगले ही पल वो भारी कार सीधे उनके ऊपर आ गिरी। उधर कुछ ही देर बाद रॉबर्ट और एली गाड़ी लेकर ट्रकस के बाड़े तक पहुंच गए। वहां उन्हें सबसे पहले बेहोश पड़ा अयान मिला। फिर जमीन पर बने निशानों का पीछा करते हुए वो बाड़े के नीचे तक पहुंच गए, जहां उन्हें एलन और दोनों बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसी बीच गाड़ी में लेटे अयान को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसने देखा कि सड़क पर जे पानी पर फिर से वही लहरें उठ रही हैं। इससे अयान तरनित समझ गया कि ट्रकस दोबारा लूट आया है। खतरे का एहसास होते ही एली और रॉबर्ट तरनित गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन उनके बैठते ही ट्रकस भी बाहर निकल आया। इसे तेजी से अपनी तरफ आते देख रॉबर्ट ने फौरन इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन ट्रकस ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी तक पहुंच गया। हमला होने ही वाला था कि सामने एक विशाल पेड़ आ गया, मगर ट्रकस ने इसे एक झटके में तोड़ डाला। फिर वो लगातार अपने सर से गाड़ी पर टुकर मारने लगा। अब तीनों को लगने लगा था कि उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी रॉबर्ट ने अचानक गियर बदला और गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा दी। कुछ ही देर बाद ट्रकस पीछे छूट गया और तीनों जल्द से जल्द कंट्रोल सेंटर की ओर निकल पड़े। उधर जंगल में भटकते हुए एलन को एक विशाल पेड़ मिल गया। रात बताने के लिए तीनों इसी पर चढ़ गए और वहीं आराम करने लगे। अगली सुबह जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके पास एक विशाल डायनासोर आ पहुंचा। वो आराम से पेड़ की ऊंची शाखों की पत्तियां खा रहा था। एलन समझ गया कि वो शाकाहारी और बेहद शांत सुबह का बुराक्यूसोस है, इसीलिए इसने बच्चों से कहा कि वो बना डरे इसे छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक बरिक्यूसोस ने जोर से छींक मार दी और लेक्स इसकी चिपचिप नाक से पूरी तरह भीग गई। कुछ देर बाद जब बरिक्यूसोस वहां से चला गया तो तीनों भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी एलन की नजर जमीन पर पड़े कुछ टूटे हुए डायनासोर के अंडों पर पड़ी। ये देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि इसने दादा जान से सुना था कि पार्क में मौजूद सभी डायनासोर मादा हैं। ऐसे में वो जंगल में खुद बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। एलन ने कुछ देर सोचा और फिर इसे एक बेहद अहम बात समझ आई। दरअसल डायनासोर बनाने के लिए उनके डीएनए में मेंढक का डीएनए भी मिलाया गया था।
और कुछ मेंढकों में जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदलने की कुकश्मता होती है, यानी मुमकिन है कि इसी वजह से कुछ डायनासोर भी नर बन गए हों और अब वो जंगल में बच्चे पैदा कर रहे हों। उधर इस बात से बेखबर अयान और बाकी लोग सरकशीद कंट्रोल सेंटर पहुंचे, लेकिन पूरी रात की कोशिशों के बाद भी चीफ इंजीनियर पाक की बिजली दोबारा चालू नहीं कर पाया। अब जान के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। इसने तरनित पूरे पाक का सिस्टम रिसीट करने का फैसला किया ताकि डिनीस का डाला हुआ वायरस पूरी तरह हट जाए। कुछ ही देर में सिस्टम रिसीट तो हो गया, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आई। अब सबको समझ आ गया था कि मैन पावर सिस्टम को मैन्युअली रीइंस्टॉल करना पड़ेगा और ये काम सिर्फ पावर रूम में जाकर ही किया जा सकता है। इसलिए चीफ बना देर किए पावर रूम की तरफ निकल गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ना बिजली वापस आई और ना ही चीफ लूट कर आया। हालात बिगड़ते देख एली और रॉबर्ट ने हथियार उठाए और खुद पावर रूम की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जब वो रिपीटरों के बाड़े के पास पहुंचे तो रॉबर्ट की नजर टूटी हुई इलेक्ट्रिक फीनिस पर पड़ी। ये देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वेलोसिरिपीटर अपने बाड़े से बाहर निकल चुके हैं। जमीन पर बने उनके पैरों के ताजा निशान भी सीधे पावर रूम की तरफ जा रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तब रॉबर्ट को एहसास हुआ कि रिपीटर यही कहीं मौजूद है। इसने तरनित एली से पावर रूम की तरफ भागने को कहा, जबकि वो खुद रिपीटरों को रोकने के लिए वहीं रुक गया। जल्दी ही एली किसी तरह सरकशीद पावर रूम के अंदर पहुंच गई, लेकिन रॉबर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही रॉबर्ट की नजर एक रिपीटर पर पड़ी, इसने फौरन बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही झाड़ियों से दूसरा रिपीटर निकल आया और अगले ही पल रॉबर्ट इसका शिकार बन गया। उधर दूसरी तरफ एलन बच्चों को लेकर जैसे ही जंगल से बाहर निकला, इसे कई गिल्ली माइनस डायनासोर जान बचाकर भागते दिखाई दिए। ये देखकर एलन तरनित दोनों बच्चों को लेकर एक सूखे पेड़ के पीछे छप गया। अगले ही पल उन्हें सारी भगदड़ की वजह समझ आ गई। दरअसल ट्रकस शिकार करने के लिए उनके पीछे लगा हुआ था। सालों तक बाड़े में कैद रहने के बाद अब वो पूरी तरह आजाद था और अपना मनचाहा शिकार कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि इसकी नजर उन तीनों पर नहीं पड़ी। मौका मिलते ही एलन बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो पार्क की इलेक्ट्रिक फीनिस तक पहुंच गए। एलन ने पहले खुद इसे छू कर जांचा। जब एलन को यकीन हो गया कि फीनिस में बिजली नहीं है तो उसने बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। अगले ही पल तीनों साव से फीनिस पार करने लगे, लेकिन एलन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जान के कहने पर एली पार्क की बिजली एक एक करके वापस चालू कर रही थी। हालांकि एलन और लेक्स तो सरकशीद नीचे उतर गए, लेकिन टिम अब भी फीनिस के ऊपर लटका हुआ था। तभी अचानक फीनिस का अलार्म बज उठा। एलन ने तरनित इसे नीचे कूदने को कहा, मगर इसी पल फीनिस में बिजली दौड़ गई। तेज करंट का झटका लगते ही टिम नीचे जमीन पर जा गिरा। इधर पावर रूम में मौजूद एली बिजली वापस आने से खुशी हो रही थी कि तभी एक रिपीटर अचानक इसके पीछे आ गया। गनीमत रही कि उनके बीच लगे बिजली के मोटे केबल्स की वजह से वो तरनित एली तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही मौका मिला एली दौड़कर बाहर निकली और फौरन लोहे का गेट बंद कर दिया। इससे इसे कुछ पिल की राहत मिल गई, लेकिन अगले ही पिल रिपीटर ने अपने नोकीले पंजों से लोहे की जाली चीरनी शुरू कर दी। ये देखकर एली बना पीछे मुड़े पूरी ताकत से भागने लगी। पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पावर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उधर एलन की लगातार कोशिशों से आखिरकार टिम की जान बच गई। इसके बाद एलन दोनों बच्चों को सरकशीद विजिटर सेंटर ले आया। इसने दोनों से कहा कि वो यहीं छुपे रहें, क्योंकि वो बाहर लोगों को ढूंढने जा रहा है। जैसे ही एलन वहां से गया तभी लेक्स की नजर अचानक एक रिपीटर पर पड़ी, जो दबे पांव विजिटर सेंटर के अंदर दाखिल हो चुका था। खतरा भापते ही लेक्स ने फौरन टिम का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाने के लिए किचन की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच कंट्रोल सेंटर के बेसमेंट में एलन की मुलाकात आखिरकार एली और बाकी लोगों से हो गई। वहां पहुंचते ही एलन को रिपीटरों के भाग निकलने की खबर मिल गई। एली ने बताया कि ये रिपीटर नॉर्मल डायनासोर नहीं है, वो इतने समझदार हैं कि अपने पंजों से दरवाजे तक खोल लेते हैं। और अगले ही पल ये बात सच साबित हो गई, क्योंकि एक रिपीटर सचमुच किचन का दरवाजा खोल चुका था। लेकिन सबसे डरूनी बात यह थी कि दरवाजा खुलते ही वो अकेला अंदर नहीं गया। इसने जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ ही पिल्लों में दूसरा रिपीटर भी वहां आ गया। तब दोनों मिलकर सीधे किचन के अंदर घुस गए और छुपे हुए दोनों भाई बहन को ढूंढने लगे। अपनी जान बचाने के लिए लेक्स लगातार टिम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छपती रही, लेकिन इसी अफरा तफरी में टिम पीछे छूट गया। रिपीटर बस इसे देख ही लेता कि तभी टिम दौड़कर एक कोने में छप गया। कुछ ही पल के लिए लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक टिम के पास रखा एक चम्मच नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही दोनों रिपीटरों का ध्यान इसी की तरफ चला गया और वो धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर लेक्स ने बना एक पिल गवाए पास पड़ा चम्मच उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। आवाज सुनते ही रिपीटर का ध्यान टिम से हिट कर लेक्स पर चला गया। लेक्स फौरन पास की एक अलमारी में घुस गई, लेकिन इसका दरवाजा बीच में ही फंस गया। वो पूरी ताकत लगाती रही, फिर भी इसे बंद नहीं कर पाई। तभी रिपीटर पूरी स्पीड से इसकी तरफ दौड़ा। असल में वो जिसे असली लेक्स समझ रहा था वो तो सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन था। लेक्स तो चुपचाप उसके पीछे छपी हुई थी। मौका मिलते ही वो तरनित उठी और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गई। उधर टिम की नजर पास के एक कमरे पर पड़ी। इसने बना देर किए पूरी ताकत से इसकी तरफ दौड़ लगा दी। पीछे खड़ा रिपीटर भी तरनित इसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन यही मौका टिम और लेक्स को चाहिए था। दोनों ने चालाकी से रिपीटर को कमरे के अंदर फंसा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद दोनों बगैर पीछे देखे फौरन किचन से बाहर भाग निकले, लेकिन दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि बेहोश पड़ा दूसरा रिपीटर अब दोबारा होश में आ चुका था।
उधर भागते भागते लेक्स और टिम जैसे ही हाल में पहुंचे सामने से एलन और एली भी वहां आ गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक रिपीटर अभी भी आजाद घूम रहा है तो वो बना एक पिल गवा सीधे बेसमेंट की तरफ भाग निकले। घबराहट में एली तरनित कंप्यूटर की तरफ भागी ताकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद किया जा सके, लेकिन रिपीटर भी कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद होने से पहले ही इसने अंदर घुसने की कोशिश की। एलन पूरी ताकत से इसे बाहर रोकने लगा। खतरा बढ़ता देख एली भी तरनित वापस दौड़ी और दोनों मिलकर पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे को बंद करने लगे। अब एलन और एली के बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ लेक्स थी। ये देखकर लेक्स तरनित कंप्यूटर के सामने बैठ गई और सिस्टम दोबारा चालू करने लगी। उधर दोनों की ताकत जवाब देती जा रही थी, लेकिन उन वक्त पर लेक्स ने सिस्टम एक्टिव कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक लॉक चालू हुआ और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अब पूरे पार्क का सिस्टम दोबारा एक्टिव हो चुका था। ये देखकर एलन ने बना देर किए फोन उठाया और जान से तरनित हेलीकॉप्टर बुलाने को कहा। तभी अचानक रिपीटर ने कांच की के पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी तरनित ऊपर लगी सीढ़ी की तरफ भागे और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे रिपीटर ने शीशा तोड़कर अंदर छलांग लगा दी। लेकिन अब उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में एक रिपीटर ने उन पर छलांग लगा दी, लेकिन तभी एक और हैरत अंगेज चीज हुई। इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, एक और विशल की डायनासोर यानी ट्रकस ने आकर इस रिपीटर को पकड़ लिया। देखकर दूसरा रिपीटर भी ट्रकस पर झपट पड़ा। दोनों खतरनाक डायनासोरों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर एलन, एली और दोनों बच्चे वहां से भाग निकले। कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। जान ने हेलीकॉप्टर उड़ाया और इस तरह सबकी जान बच गई। इसके साथ ही वो रहस्यमयी टापू हमेशा के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया। अगर आप इस तरह की मजीद दिलचस्प मूवीज की एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मूवी स्प्लैश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।